Good morning, students. Now we come on to the next topic in the motion, that is distance and displacement. इस टॉपिक के अंदर what type of questions will be asked? Number one, distance and displacement itself. Number two, some numerical problems related with that. And number three, what is the difference between distance and displacement? And number four, what do you mean by positive displacement, negative displacement and zero displacement? मैंने before starting दिस टॉपिक मैंने आपको ये बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए हम टॉपिक पर आते हैं एंड देन आफ्टर वेयर वी फील प्रॉब्लम वी विल डील विद दैट। नंबर वन इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट्स definition: the actual length of path covered by an object is called distance. Actual length of path means if you are going somewhere and you are covering a distance of 200 meter while going there and you come back to your house, that is 200 meter, so total distance is 400 meter. So actual length of path जो आप कवर करिएगा उसको स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर कर दीजिए, वो आपका डिस्टेंस होगा। जनरली इट इज डिनोटेड एज इट्स यूनिट इज मीटर एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, फॉर द डिस्प्लेसमेंट इट इज वेरी understandable thing that the shortest distance between initial and final point, ये ध्यान रखिए, इसी में बच्चे जनरली परेशान होते हैं। The shortest distance between initial and final point is called displacement. One simple example यहाँ भी ले लीजिए। जैसे आप अपने घर से स्कूल आए, स्कूल सपोज कर लीजिए 500 मीटर अवे फ्रॉम योर रेजिडेंस एंड एट द एंड ऑफ द स्कूल मींस स्कूल के खत्म होने पर जो आपका टाइमिंग था यू go back to your house. So the distance, while you measuring the distance 500 meter coming from home to school and again 500 meter from school to home, that is the distance is 500 meter plus 500 meter, that is 1000 meter. But the displacement is totally different thing. The shortest distance, अब जैसे between initial and final point, आपका initial point क्या था याद कीजिए, आपका घर था और वापस लौट के गए तो आपका फाइनल पॉइंट क्या था, वो भी आपका घर था। तो इनिशियल से फाइनल जो पॉइंट है उसको अगर आप माइनस करिएगा तो क्या आएगा, जीरो, दैट इज जीरो। सो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। रुकिए, कुछ एग्जाम्पल में हम लोग आएंगे तो और क्लियर होगा। हम इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल देंगे, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल तो निश्चित देंगे। बोर्ड पर भी 3-4 एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड और इट्स यूनिट इज इन मीटर बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्केलर था हमारा डिस्टेंस, उसमें हमें डायरेक्शन नहीं था, लेकिन here in displacement we have to denote, we have to use and we have to symbolize this displacement in meter also, but in a particular direction डाल देंगे। ये सिंपल इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ। ऐसे मैं लास्ट में आपको ये भी कहूंगा कि दिस डिफरेंस में यही आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। एक ये भी आपके पास हैंड है, बहुत अच्छा फ्री हैंड आपको मिला हुआ है। अब आइए एग्जाम्पल पर।
देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि आप दिल्ली गए घूमने समर वेकेशन में from your home. Delhi is 1000, just you suppose that Delhi is 1000 kilometer from Muzaffarpur, and you go to Delhi, and after that you come back to Delhi. So what is the distance and what is the displacement? ये दोनों को समझिए. Distance is the actual path covered by any object. Means you have covered 1000 kilometer from one side, and you again came back from Delhi to Muzaffarpur. That is 1000. Means 1000 kilometer plus 1000 kilometer, that is 2000 kilometer. It's the distance, but the displacement. You have started journey from Muzaffarpur to Delhi from your residence, and you come back to Muzaffarpur. That is at your residence. So final point, starting point is your residence. And final point is again is at your residence. So final से initial point को अगर आप घटाइएगा, that is 0. 1000 minus 1000, that is 0. वो दोनों 0 होगा. अब आइए एक दूसरा एग्जांपल. सपोज कीजिए कि we have started journey on semicircular path from A. Arrow indicate करता है कि आप किधर से स्टार्ट किए. For the sake of displacement, distance पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. अब from you have started journey from A to B on a circular path, semicircular path, whose radius is R. So what is its distance? आप जानते हैं कि सर्कुलर पाथ के चारों ओर जो सर्कमफ्रेंस बनता है, इट इज द डिस्टेंस. सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है बोलिए? परहैप्स 2 पाई r. रेडियस यहाँ स्मॉल r है, सो 2 पाई r. और ये हाफ सर्किल पर हमने डिस्टेंस कवर किया है, इसलिए 2 लिखा, 2 से 2 कट गया, दैट इज पाई r. दिस इज द डिस्टेंस. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. A से B तक पहुंचने के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढिए. शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज AO एंड OB. ये दोनों जो होगा प्लस हो जाएगा, यानी AB इक्वल टू R प्लस R, यानी AO प्लस OB मींस AB ही इसका जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा. यानी 2R, दैट इज 2R, and 2R बराबर डायमीटर होता है, आप जानते भी हो. Diameter is equal to the twice into radius. चलिए दूसरा एग्जांपल पर आइए, परहैप्स आप समझ गए होंगे. दूसरे एग्जांपल पर आइए. इसमें क्या है कि an object started journey from A in the anti-clockwise. देखिए here also its radius is R, smaller, so distance is complete, and started journey from A to B and come back to A. So its distance is 2 pi r in flat way again. But its displacement, why it is 0? Because it started from A and it come back at A. So initial point is A and final point is also A. So इनके बीच का कोई भी displacement है, that is 0. I hope that you are in a right position to understand. Third में आइए. थर्ड में देखिए कि an object started its journey from A, gone 5 meter, here is meter written, 5 meter due north. ठीक है. Then from B gone to 12 meter due east. Okay. So what is its distance? 5 meter plus 12 meter, that is 17 meter. And its displacement is, अब आप खुद सोचिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढिए, दैट इज AC. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब ये कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिए. ये आपको जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये AC इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होता है AB² + BC². शायद आपको याद होगा. दैट इज AB के जगह 5 डाला, BC के जगह 12 डाला. ये 25 plus 144 169, that is 13 meter. Displacement is 13 meter. Now come on to the example number 4.
एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम ए एंड गो टू बी। अब देखिए एक ऐसा एग्जांपल मैंने लिया है इसमें जिसमें कोई मेजरेबल थिंग नहीं लिखा है, डिस्टेंस कुछ भी मैंने नहीं डाला। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आएगा, आ सकता है एग्जाम में, और एनटीएस में, क्योंकि ये बहुत ही इजी वन है। तो आप कहेंगे कि सर इस ऐसा आएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं, ये आपको पढ़ना है। इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट इज ऑब्जेक्ट स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम ए टू बी, सिर्फ एरो पर जाइए, देन बी टू सी एंड सी टू डी, ओनली यू जस्ट study about the arrow. So what is this distance? AB plus BC plus CD, ये पूरा इसका डिस्टेंस हो जाएगा। मैंने जान करके इसमें कहीं कुछ 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर नहीं डाला, और इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये AB, डायरेक्ट A to D, that is the displacement। ठीक है, अब आइए आप एक और भी एग्जांपल है, दैट इज फिफ्थ वन, एंड फिफ्थ एग्जांपल इज दैट एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम ए टू बी, अगेन बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट जर्नी फंक्शन हो रहा है, और वो समझिए तो इट इज एक्चुअली स्क्वायर पाथ है, क्योंकि सबका डिस्टेंस जो है हमारा 10 मीटर है। तो जब सारा डिस्टेंस ऑन 4 साइड्स आर इक्वल 10 मीटर, दैट इज स्क्वायर पाथ है, स्क्वायर है वो। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, मींस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, दैट इज 40 मीटर। और ऑब्जेक्ट A से स्टार्ट करके B पर गया, B से C, C पर D, D से A, again come back to A, so its displacement is 0। आपके लाइफ में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी बुक्स में भी है, और भी अदर प्रॉब्लम्स को, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को जरूर आप ढूंढिए और उसको बनाइए। ये आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक हुआ। अब आइए डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, मैंने डिस्टेंस इसलिए नहीं लिखा है कि डिस्टेंस को सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन पर आप रिप्रेजेंट करिएगा, जो भी होगा वो आंसर होगा, उसमें कोई, इसलिए मैंने उसको हल्का ओवरलुक किया, बट डिस्प्लेसमेंट को ओवरलुक नहीं किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। मैंने क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन बनाया, बीच में हमने ओरिजिन डाल दिया, हियर इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज ये मीटर में हमने डाला हुआ है 1 2 3, एंड हियर इज द नेगेटिव डायरेक्शन, है ना, -1 -2 -3 मीटर। ये एक स्ट्रेट लाइन पर हमने एक डेटा तैयार कर दिया, और इस पर हमने केस डील किया। केस डील क्या किया, यहां हमने A लिखा, यहां पर मैंने B लिखा। फर्स्ट केस में क्या किया कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड इट्स जर्नी पार्टिकल फ्रॉम A to B इन सम टाइम, मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन बहुत ज्यादा समझा सकता हूं। इन टाइम इंटरवल A, टाइम इंटरवल T1, in time T1 particle is at A from O, means origin, and in time interval T2 particle is at B। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट को ढूंढिए जरा ध्यान से। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट को क्या कीजिएगा, इनिशियल पॉइंट हमारा A था, फाइनल पॉइंट B था, इसमें डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भेजिए। पहले सर्च कीजिए कि इनिशियली कहां था, तो इनिशियल हमारा A पर था, T1 में A पर था, T2 में B पर चला गया, और डिस्प्लेसमेंट कह रहा है A to B मेजर करने के लिए, है ना। तो A to B यहां जो डिस्प्लेसमेंट मेजरेबल होगा, दैट इज यहां B पर आया। अब A to B मैं बोल रहा हूं, लेकिन देखिए डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन याद कीजिए, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, दैट इज 3 - 2, दैट इज 2 मीटर। दूसरा एग्जांपल बनाइए कि फ्रॉम B to A, इसका मतलब यह है कि a particle is at B in time interval T1। कहां से, मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट को हमेशा बोल दीजिएगा, इट इज अ डिकोरम, शिष्टाचार है, उसका भले यूज हो या नहीं हो,
लेकिन बोल देना पड़ता है। T1 टाइम में वो क्या था, 3 पर था, B पर था, और T2 में 1 पर चला गया। कहने का मतलब कि स्टार्ट कहां से किया, 3 से किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट क्या हुआ, ए है। इट मींस कि 1 - 2 दैट इज -2। इस माइनस को ध्यान दीजिएगा, मैं यही पढ़ाने BCS का आया हूं। और तीसरा कि a particle from A to A in some time, एक पार्टिकल जो था टाइम इंटरवल T1 में A पर था, आफ्टर सम टाइम इंटरवल T2 वो A पर ही रह गया। तो इनिशियल पॉइंट भी A था, फाइनल पॉइंट भी A था, दैट इज 1 मीटर दैट इज 0। इस टॉपिक को कुछ बुक्स आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ऐसे लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज मीन्ड बाय दैट? और एक बुक में हमने नो डाउट एससी वर्मा के रेफरेंस को लिया है, उसको ऐसे उन्होंने दर्शा दिया। क्यों? ये भी तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया और ये जीरो है। तो आपका टॉपिक सेम है। पहले टॉपिक को, क्योंकि आप लोग टॉपिक पे जहां फंसते हैं तो मेन चीज को आप नहीं केयर करते हैं। सेम चीज है, डिस्प्लेसमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन और displacement is positive, displacement is negative and displacement is zero। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको इग्नोर हमें करना नहीं है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, आप जानते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो मैंने ये टॉपिक आपको चूज किया। और लास्ट में जो टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक लिख करके और बीच में जो है एक डिवाइड कर दिया, इधर डिस्टेंस किया, इधर डिस्प्लेसमेंट, और कुछ लिखा नहीं है। मेरे को आपसे मतलब है, मैंने कोई यहाँ कुछ लिखा नहीं है। YouTube पर और कोई भी पढ़ेगा तो इतनी समझ हो जाएगी कि यहाँ तीन जो है आप पॉइंट डालते हैं। 3 डिस्टेंस में, अगर डिस्टेंस में एक पॉइंट डालते हो, ध्यान दो, उसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में डालो। जैसे फर्स्ट पॉइंट को अगर डिफिनीशन बनाते हो तो डिस्टेंस का डिफिनीशन अगर फर्स्ट पॉइंट में है तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन भी फर्स्ट पॉइंट में ही डालना। 3-4 पॉइंट हम अपने पास रखना। मैंने यहां दिया भी है, आपका अगर थोड़ा सा ये होगा और एक पॉइंट अभी पढ़ लीजिए, ध्यान दो, ये पहला पॉइंट अगर बनाओ, ये पहला पॉइंट बना दो, ये दूसरा पॉइंट बनाओ, यहां भी दूसरा पॉइंट बना दो, ये तीसरा है, ये तीसरा, एक पॉइंट अभी पढ़ लिया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। 4 पॉइंट हो गया। जनरली ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आपके स्टैंडर्ड 9 में इतने ही टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। अब हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी से। देखो मैं एक और काम कर रहा हूं कि डिस्टेंस अगर मैंने पढ़ाया तो साथ साथ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया, क्योंकि एक स्केलर है तो दूसरा वेक्टर लिया और इसी का कहने का मतलब कजन लिया है, पर बिल्कुल सिमिलर चीज लिया है जिससे थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आए। उसी तरह मैं अगर स्पीड पढ़ाने चलूंगा जिस वीडियो में, स्पीड के बाद मैं वेलोसिटी पढ़ाऊंगा साथ साथ, और ऐसे ही मैं ग्राफ में भी बढ़ूंगा, जिससे आपको मेरा प्रयास है कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर जो है वो स्पीड एंड वेलोसिटी में हम लोग आएंगे। थैंक यू।